So hello everyone, and welcome to Career Launcher. So as you can see the thumbnail, very important news is trending in right now, and that is the Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has resigned. Actually, I hope you all are aware. And in fact, she had to leave Bangladesh, and she actually came to India and all. So I hope you all are aware. मैंने इससे रिलेटेड पहले भी क्लास ली थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था बांग्लादेश प्रोटेस्ट से रिलेटेड. So in today's class, we will be actually discussing in detail. So am I audible? मेरी आवाज आ रही है? So if I'm audible, please write in the comments. Yes, sir, you're audible. Am I audible, guys? Okay. So basically, इससे आज हम लोग क्लास में जानेंगे कि क्या क्या चीजें हुई. Specifically, we'll be talking about the Bangladesh protest, why the protest, student protest started. Okay. And then finally it culminated into resignation of Sheikh Hasina and all. तो पूरा प्रोसीजर जानेंगे. दूसरी चीज we will be discussing actually is some of the previous year question also associated with Bangladesh that was asked in the exam. तो वो हम लोग जानेंगे. ठीक है. So that also we will be discussing it in detail. So this is the I hope you are aware. Sheikh Hasina quits, flees Bangladesh, lands in India as protest surge. Surge मतलब बढ़ना, बहुत तेजी से भागना. Okay. So please tell me, so when she left Bangladesh and came to India, she landed in which airport? What is the name of that airport called? कोई बता सकता है? Because since yesterday it has been in the news. कल से लेकर आज तक ये न्यूज में कि she left Dhaka and came to India. So कौन से एयरपोर्ट पर वो लैंड किया आपको बताना है. एंड देखो आप देख सकते हो शेख हसीना लैंड्स इन इंडिया. देखो एक्चुअली हुआ ये था कि जस्ट बिफोर हर रेजिग्नेशन द बांग्लादेश आर्मी गेव 45 मिनट्स अल्टीमेटम टू रिजाइन. मतलब ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा कहा जा रहा है, जैसा न्यूज रिपोर्ट आ रही है कि लास्ट में जब चीजें कंट्रोल के बाहर हो गई, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो बांग्लादेश की आर्मी ने ही कह दिया कि हम आपको 45 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, आप रिजाइन करके चले जाइए. सो दैट इज व्हाट द लास्ट मोमेंट मीन, बिकॉज बाय एंड लार्ज अगर आपको पता होगा कि बांग्लादेश के आर्मी एंड आर्मी चीफ ऑल आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, है ना. But finally, when things went out of control, the Bangladesh Prime Army itself said, we are giving 45 minutes, you should leave it. And then she decided to leave, resign and leave. And now she landed, yes, very good. Where do you find Hindon Air Base? कहाँ मिलेगा आपको? Yes, Pratik, just saying, Arshnur, Sharve Karale, you all right. Actually, she landed in Hindon Air Base. कहाँ मिलेगा? In fact, Hindon River भी है वहाँ पे. Indian Air Force का बेस है ये. Hindon River is also there. गुड़गांव एनसीआर नहीं, एक्चुअली इट्स गाजियाबाद. ठीक है, गाजियाबाद यूपी में मिलेगा. ठीक है, दिल्ली एनसीआर कह लोगे तो चलेगा, बट यस एक्चुअली इट इज, है ना, गाजियाबाद. ठीक है. तो दिस वाज एक्चुअली द इमेज. ये वाला वीडियो आपने सबको देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा है कि एक्चुअली परहैप्स यहीं पे कहीं पे शी इज देयर एंड शी एक्चुअली टुक दिस हेलीकॉप्टर एंड फ्रॉम ढाका शी रीच्ड हिंडन एयर बेस. ठीक है, विच इज इंडियन एयरफोर्स बेस इन गाजियाबाद, है ना. ठीक है, ओके, है ना. अब एक चीज और आपको जानना होगा, हिंडन जो है ना रिवर भी है एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी. हिंडन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. ठीक है, बिकॉज दिल्ली से आपको पता होगा यमुना रिवर जाती है ना, हिंडन रिवर भी वहां पे. सो इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, है ना, हिंडन एयर बेस एंड ऑल. खैर, सो लेट मी शो यू. So here is Bangladesh Dhaka and she left for here. Okay. So this is about it. The moment she landed at Hindon Air Base, Prime Minister holds CCS meet. So what is CCS? कोई बता सकता है? And उसमें कौन-कौन members होते हैं? Who are the members? So when she actually landed, she was, at the same time, Mr. Ajit Doval met her. So who is Ajit Doval? Please tell me. These are very important questions. CCS का मतलब होता है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. ओके, CCS, that's what we call. So actually अगर आप देखोगे, so कैबिनेट, yes, NSA of India, very good. शारवे कराले, मुक्ति शर्मा, मिशिका, जस्ट सेइंग. हाँ, CCS होता है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. यस प्रतीक, यस. देखो CCS में ये लोग होते हैं सिक्योरिटी. तो प्राइम मिनिस्टर इज देयर, देन डिफेंस मिनिस्टर इज देयर, then home minister is there, then finance minister is there and foreign minister. तो FM दोनों हो गया, बस समझ लेना, this is finance, this is foreign. ठीक है.
So these five people, these five ministers are there in cabinet committee on security. तो ये पांचों लोगों ने मीटिंग की, ठीक है. And yes, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina lands in India, meets Ajay Doval, taken to safe house, set to go to UK. अच्छा, कुछ न्यूज के हिसाब से मतलब ये आ रही है कि शायद उनको बाद में इंग्लैंड भेज दिया जाए, ठीक है. So when she came actually back from Bangladesh to Delhi, she will be sent to UK. Okay, most likely. अब देखो, चलो देखते हैं क्या होता है, let's see, है ना. So that you should be knowing it, है ना. अब उसके बाद क्या हुआ? So when she resigned, came to India, the Bangladesh president dissolved the parliament. ओके, तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को. हालांकि जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है, ही इज एक्चुअली फ्रॉम द सेम पार्टी, अवामी लीग. ओके, बट व्हेन थिंग्स गोज आउट ऑफ कंट्रोल, ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट हैज टू लिसन टू व्हाट द पब्लिक मूड इज एंड ऑल. तो खैर ये हुआ कि उन्होंने डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बांग्लादेश प्रेसिडेंट एक्चुअली हैज डिसाइडेड टू हैव एन इंटरिम गवर्नमेंट, यानी एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी. And a leader of opposition, one of the main opposition leader of Sheikh Hasina, Khalida Zia, she was in jail, and the president has ordered to come out of it. तो actually, ठीक है. तो ये important चीज है. We will be discussing about it because of course Khalida Zia and Sheikh Hasina, these two are important lady actually in the politics of Bangladesh. ठीक है. तो इन दोनों के बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में जानेंगे अभी, ठीक है. So please watch the class till last. You will get to know each and everything because ये दोनों important है. खालिदा जिया के बारे में, so we'll go little bit history, और थोड़ा सा शेख हसीना के बारे में, and we will know the history as well. ठीक है. Now, तो ये मैंने पहले भी कराया था, but okay, let's take an idea. तो हुआ ये था कि पहले 17 जुलाई को उस टाइम पे जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी कि 5 लोग मरे, फिर बाद में प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गया, 200-300 लोग से ज्यादा मर गए, है ना. आपने देखा ही होगा ये सब चीजें. That the protests started happening. It spread so fast actually that perhaps more than 200-300 people died. तो ये सब चीजें कब से न्यूज थी? 15-16 जुलाई से, है ना. 15 से 16 जुलाई के आसपास ये न्यूज में था. मतलब लास्ट 20 डेज में ये सब बांग्लादेश में वायलेंस देखा गया. ओके, सो ठीक है. अब देखो, एक दो चीज आपको समझनी है. देखो, दिस इज, है ना, बांग्लादेश. आपको शायद पता होगा, इफ यू आर नॉट अवेयर, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो कौन सी कंट्री से टच करता है, पूछा आता है. विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? सो द आंसर इज बांग्लादेश. बी केयरफुल, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है. इवन जैसे आप बोलोगे सर पाकिस्तान, देखो इतना पाकिस्तान नहीं, लेकिन बांग्लादेश का से सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है. चाइना से भी उतना नहीं करता है. खैर, तो दिस इज अ बेसिक जीके क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है. यस, मुक्ति शर्मा जस्ट सेइंग, राइट. हाँ, तो हुआ ये था कि जब प्रोटेस्ट जो है ढाका और चट्टोग्राम, देखो यहाँ पे एक जगह है चट्टोग्राम, देखो यहाँ पे तो ढाका यहाँ पे होगा बीच में कहीं पे, ठीक है. एंड समवेयर है यहाँ पे पोर्ट सिटी है जिसको हम लोग चिटागोंग कहते हैं या चट्टोग्राम भी कहते हैं, ठीक है. इफ यू आर अ क्रिकेट लवर यू मस्ट नो दिस. यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है कई बार चिटागोंग में. खैर, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये दो जगह और एक रांगपुर जगह, ये सब में प्रोटेस्ट शुरू हुआ. तो प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ वो जानते हैं. प्रोटेस्टर्स का मेन डिमांड ये है कि दे आर डिमांडिंग एंड टू द रिजर्वेशन which was provided to veterans who fought 1971 war and to 30% governments. अब देखो, I hope you are aware that 1947 में when India got independence, partition, unfortunate partition happened. तो उस टाइम पर this was called as West Pakistan, है ना, and this was called as East Pakistan. ये तो पता होगा इतना आपको, hopefully. Now what happened was, ठीक है, we are not going in detail, but yes, a basic idea that December 1971 में something happened, and because of which ये East Pakistan से क्या बन गया? From East Pakistan ये became Bangladesh. Okay, we are not going in history because अगर history में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा history है, ठीक है. और ये वाला जो हिस्सा है, चूंकि वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट और ईस्ट बचा नहीं, तो इसका नाम पाकिस्तान हो गया. So after 1971 this was called as Pakistan. Okay. और इस जो बांग्लादेश जो बना 1971 में, इसमें कहा जाता है whose role main role was, who was the main leader in that 1971 war of independence of Bangladesh जो हुआ, उसमें मेन लीडर कौन थे, इनका नाम आता है. और इनका नाम क्लैट में पहले पूछा भी है प्रीवियस ईयर में, and that is why I'm expecting you all to answer it. So who was the main leader? ठीक है, so the main leader was शेख मुजीबुर रहमान. ठीक है, यस, शेख मुजीबुर रहमान जो करंट प्राइम मिनिस्टर थी अभी टिल नाउ, उनके पापा थे. ठीक है,
मतलब शेख हसीना के फादर थे. ओके, yes Pratik, Ansh, he's also known as Banga Bandhu, right Pratik? Very good. Ansh, Adrija, just saying, Mishika, you all are right. So शेख मुजीबुर रहमान 1971 में फिर वहां से प्राइम मिनिस्टर बनते. हम बहुत हिस्ट्री में बहुत डिटेल नहीं जाने बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम अ वेरी लॉन्ग क्लास. ओके, सो and he is also considered as father of nation of Bangladesh, Banga Bandhu. और इन्होंने ही पार्टी स्टैब्लिश की थी अवामी लीग. ओके, विच इज नाउ रन बाय द शेख हसीना. ओके, लेकिन क्या होता है 1971 में ये हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद, 4 साल बाद, व्हाट इज द डेट? प्लीज टेल मी द डेट. एक खास पर्टिकुलर डेट को ये एग्जाम में पूछा हुआ, क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. शेख मुजीबुर रहमान, तो SMR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ही वाज असैसिनेटेड. तो सिर्फ उन्हीं को नहीं मारा गया, उनके जितने भी परिवार वाले थे सबको मार दिया गया. Okay, Shreya, I'll be speaking in English as well. So what happened was, yes, very good, Pratik. I was expecting this. Please tell me the exact date on which Sheikh Mujibur Rahman was assassinated. This is a previous year question. So 15th August 1975. ठीक है? So 15 अगस्त 1975 को उनको, उनके और उनके सारे परिवार को मार दिया गया. Now the question is कि जब सारे परिवार को मार दिया गया, how did Sheikh Hasina survive? उनकी बेटी बच कैसे गई? Because she was in England at that time. She, along with one more sister, I think, दो बहनें थी, and they were not in Bangladesh at that time. ठीक है, so they were in England. Okay, so when assassination happened, Sheikh Mujibur Rahman's assassination happened, along with not only he but all his family members were killed. So in that case, her daughter survived because she was not in Bangladesh. She was at that time in England, along with, I think, there was one more sister. हाँ, यूरोप में थी, right? हाँ, yes Priyanshi, right? Mishika just saying you all are right. So ये बात है till now, ठीक है? तो ये पूछा जा चुका है. So उसके बाद जो है, बाद में she came back and all, तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी, we are not going in that, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है. तो that is what actually happened and all, ठीक है? अब बात क्या है कि जो 1971 वॉर हुआ ना, देखो ऐसा कहा जाता है कि 1971 जो इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ, I mean which made East Pakistan as Bangladesh, इसमें ज्यादातर परहैप्स अवामी लीग वाले लोग थे, परहैप्स, I mean it is said. So बात क्या थी? Why did the protest erupted? तो प्रोटेस्ट जो हुआ वो ये हुआ ना कि जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ओके, उसमें कह दिया गया कि 30% शुड बी रिजर्व फॉर दोज हु आर फ्रीडम फाइटर ऑफ 1971 वॉर. फ्रीडम फाइटर की फैमिली से, मतलब उनके बच्चे उच्चे हैं ना, बिकॉज 1971 वॉर के जो फ्रीडम फाइटर होंगे तो वो बूढ़े हो गए, तो वो तो नौकरी करेंगे नहीं. ओके सर, इंग्लैंड और जर्मनी आप एक बार चेक कर लेना, बट शी वाज नॉट इन एक्चुअली एट दैट टाइम शी वाज नॉट इन इंडिया, इन बांग्लादेश. ठीक है, खैर, ठीक है. सो the 30% reservation which is supposed to be provided to actually the freedom fighters of 1971 war. तब जो प्रोटेस्टर्स का कहना यह है कि ये अवामी लीग के लोगों को फायदा देगा. So this will actually, the protest started because the protesters said that it will be a bias towards people of one political party, Awami League, and they said, the protesters said that it is against the merit. तो लोगों ने ये कहा कि मेरिट के अगेंस्ट है, इसीलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. ओके, सो यू गॉट द रीजन, द मेन रीजन व्हाई इट हैपेंड, व्हाई द प्रोटेस्ट स्टार्टेड. नाउ एक्चुअली होता यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ना, कोटा रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1971 वॉर, ये जो है 2018 में ना पहले लाया गया था. इट वाज स्टॉप्ड इन 2018. पहले अर्लियर इट वाज ब्रॉट बट इट वाज स्टॉप्ड इन 2018. बट क्या हुआ ना कि लास्ट मंथ द बांग्लादेश हाई कोर्ट एक्चुअली रीस्टेटेड इट और चेंज द डिसीजन. तो बांग्लादेश हाई कोर्ट ने वापस ले आया ऑर्डर पास करके कि दैट रिजर्वेशन और दैट कोटा सिस्टम शुड बी ब्रॉट बैक. तो जैसे ही ऑर्डर पूरा हंगामा हो गया, सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड ऑल. ओके, आफ्टर दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश सस्पेंडेड द हाई कोर्ट्स ऑर्डर फॉर 4 वीक्स. 4 वीक्स मतलब 1 मंथ के लिए लगभग, है ना. ओके, तो जब बांग्लादेश हाईकोर्ट ने वापस कहा, मैंने बांग्लादेश हाईकोर्ट सेड दैट यस इट शुड बी रीइंस्टेटेड, दोबारा लाया जाए वो रिजर्वेशन कोटा फॉर द फ्रीडम फाइटर्स किन. Then what happened was the people started protesting, and when protest went out of control, the Supreme Court immediately stayed the order for 4 weeks. 4 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाइए क्लास कीजिए. So the chief justice of the Bangladesh said that go and attend the classes, and now since we have suspended it,
no need to worry. लेकिन but you know what happened was कि once the protest started it could not be actually rolled back. तो एक बार जब protest शुरू हुआ तो वो इतना ज्यादा हो गया कि वो कंट्रोल से बाहर हो गया. So yes, one more thing this article says that reservation was provided for women, disabled people and ethnic minority groups also, but the students were only concerned about this. They were protesting against 1971 war, I mean like freedom fighters relatives. So for them actually they said कि we will not like this. बाकी के लिए उनको problem नहीं था. So they didn't have any problem when women were given reservation, when disabled people were given reservation, and when ethnic minority groups were given reservation. So they had the problem only when the veterans, the war veterans or the 1971 war veterans relative or against a kin were given the reservation. So main जो protest हुआ, हाँ, yes, very good Ansh, you are right. Even the same thing actually happened in the past as well. ठीक है, तो अगर होगा ना, so we'll be coming up with more question and answer. Maybe कल या tomorrow or in the upcoming classes, we will come up with more such content and all. ठीक है, yes, okay. तो अब देखो आर्टिकल क्या कह रही है. शेख हसीना who resigned as the prime minister of Bangladesh was the prime minister since when? 2007, 2011, 2009, 2015. What is the right answer? बताइए. जो इन्होंने रिजाइन किया वो प्राइम मिनिस्टर थी कब से? एनीवन? यस, फास्ट आंसर कीजिए. ये तो पता होगा, इतना न्यूज में आ रहा था वो. यस, प्रतीक, प्रियांशी गोयल, मिशिका, जस सिंह, आकाश, यू आर राइट. हाँ, यस, मुक्ति शर्मा. हाँ, सो सी इज द राइट आंसर. 2009. यस, सैफी नोमानी वाला राइट. आप देख सकते हो 2009 से थी, 2009 से 5 अगस्त. अच्छा, ये डेट याद रखिएगा. शी रिजाइंड ऑन विच डेट? 5 अगस्त 2024. बिकॉज अगर आप देखोगे इन द पास्ट द क्लैट हैज आस्क्ड द एग्जैक्ट डेट्स एज वेल. तो एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो इसीलिए यू शुड बी नोइंग इट. अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि वी शुड बी नोइंग समथिंग मोर अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश. द फर्स्ट, मैंने को बताया देयर आर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश. फर्स्ट इज कॉल्ड एज बांग्लादेश अवामी लीग या अवामी लीग कहते हैं. एक जो पार्टी है वो अवामी लीग, वही जो शेख मुजीबुर रहमान ने एस्टैब्लिश किया था, एस्टैब्लिश बाय शेख मुजीबुर रहमान, द फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, एंड हिज डॉटर शेख हसीना इज करेंटली द was till now the prime minister. Okay, तो दूसरी पार्टी है that is called as BNP, the main political opposition party is Bangladesh National Party. And उनके जो हेड थे अभी करेंटली, she is actually खालिदा जिया and her husband was the founder of it, जियाउर रहमान. ठीक है, so 2 main political party, अवामी लीग एंड बांग्लादेश नेशनल पार्टी. सो अवामी लीग की जो करंट लीडर थी शेख हसीना थी, उनके फादर ने शेख मुजीबुर रहमान ने एस्टैब्लिश किया था अवामी लीग. ओके, द फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश. दूसरा बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, एक्चुअली द करंट लीडर इज खालिदा जिया. हर हस्बैंड जियाउर रहमान एस्टैब्लिश दिस पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड एज बांग्लादेश नेशनल पार्टी. ठीक है. नाउ सेकंड, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जियाउर रहमान, आई मीन इट इज सेड दैट वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सार्क वाज, ये जानते हो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. So one of the founders of SAARC was Ziaur Rahman, ऐसा कहा जाता है. SAARC का नाम सुनाओगे तो South Asian Association for Regional Cooperation. Now, अब बात यह है कि from India's point of view, which is generally considered as comparatively pro-India, तो yes, you should know it. Awami League is generally, जो जितने भी scholars लिखते हैं, so the Awami League is generally considered as more pro-India as compared to Bangladesh National Party. इसलिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि perhaps this incident is not a good news for India and all. खैर अभी इतना जनरली इतना जल्दी जजमेंट नहीं देना चाहिए, because let's wait what will happen in the Bangladesh. But yes, by and large एक रफ आइडिया होना चाहिए कि generally speaking as compared to Bangladesh National Party, Awami League is more pro India. ठीक है, so pro India ज्यादा supportive of India, Awami League है as compared to Bangladesh National Party. ठीक है, ओके. अब देखो, चूंकि ये पावर जब प्राइम मिनिस्टर थी तो खालिदा जिया, हु इज द मेन लीडर ऑफ अपोजिशन, यू कैन से, शी वाज एक्चुअली इन जेल बिकॉज ऑफ शी वाज कन्विक्टेड इन मेनी करप्शन चार्जेस एंड ऑल. बट जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया, द मोमेंट शी रिजाइंड एक्चुअली एंड शी लेफ्ट द बांग्लादेश, द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ऑर्डर्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर, शी हैज आल्सो अर्लियर सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर, वो भी पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, एक्स प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया टू कम आउट ऑफ जेल. अच्छा,
गौर करने वाली बात यह है, कैन दे आस्क द क्वेश्चन प्रो इंडिया, अंश पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि वेदर दे विल आस्क, बट हाँ एक आइडिया होना चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान को भी पास्ट में इंडिया ने हेल्प किया है, शेख हसीना को भी अभी किया, तो यस हो सकता है पूछने में भी। बट हाँ मतलब ये एस्टैब्लिश फैक्ट है इस तरह से कि अवामी लीग इज जनरली मोर प्रो इंडिया एज कंपेयर टू बीएनपी। ठीक है, खैर तो अब देखो गौर करने वाली बात है कि बांग्लादेश प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया रिलीज ऑफ खालिदा जिया। द मेन थिंग इज बांग्लादेश प्रेसिडेंट जो है वो खुद अवामी लीग से, ठीक है, बट यस इट्स ऑल अबाउट द टाइम, वक्त के हिसाब से डिसीजन होता है ना। सो ही थॉट कि एक्चुअली अभी जो है देयर इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट शेख हसीना, सो लेट्स रिलीज, मे बी समथिंग लाइक दैट। खैर तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन है क्लैट प्रीवियस ईयर के, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि चूंकि मैंने पहले भी कराया है तो आप लोग आंसर करोगे और फास्ट आंसर करोगे। शेख मुजीबुर रहमान सर्व्ड एज द फर्स्ट डैश ऑफ बांग्लादेश। इस पर 2021 से पूरा पैसेज ही आया था इन पर, शेख मुजीबुर रहमान पर। Yes, the first president. B is the right answer. Yes, प्रियंशी, प्रतीक, मुक्ति शर्मा, शारवे, सैफी, राशि। और मैंने एक होमवर्क दिया था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पता करने के लिए बांग्लादेश के। Who was the first prime minister? Sheikh Mujibur Rahman was first president. So who was the first prime minister? So first prime minister, तो ये इसका आंसर प्रेसिडेंट हो गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर was ताजुद्दीन अहमद। Yes, प्रतीक, वेरी गुड। ताजुद्दीन अहमद थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये सब न्यूज में तो आपको पता होना चाहिए। यस, सैफी, नोमानी, अंश, राशि वाला राइट है ना। और शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन ये मैंने डिस्कस करा है 15 अगस्त 1975, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ठीक है, ठीक है। सो ही वाज कॉल्ड एज बंगा बंधु, है ना, फादर ऑफ नेशन, अवामी लीग के फाउंडर, है ना। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। अब देखो तो शेख मुजीबुर रहमानी के बारे में देखो, अब ये जो है ना ये मूर्ति थी उनकी, सो हिज स्टैचू वाज आई मीन ब्रोकन बाय द पीपल एंड ऑल। तो ये सब देखा होगा, प्रोटेस्टर्स जो है प्राइम मिनिस्टर घर के अंदर घुस गए हैं, ये तो सोफा पे घुस गए, कुछ कर रहे हैं। सो दीस थिंग्स वेर इन द न्यूज। ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट, है ना। नाउ चूंकि रिजर्वेशन की हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा ये बताओ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन सा है इस चारों में से? हालांकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट यस आई एम डिस्कसिंग इट बिकॉज यू शुड नो इट। यस, वेरी गुड। इंदिरा साहनी केस हमने बहुत बार डिस्कस किया जो ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड था। यस, नामिया, मुक्ति, प्रतीक, राशि, प्रियांशी, सैफी, अंश, शारवे, जो वाला राइट है ना। अब देखो एक चीज और पता होना चाहिए कि देयर इज अ पर्सन, अ नोबल लॉरिएट, हिज नेम इज मोहम्मद यूनुस। इनफैक्ट ही वाज आल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद शेख हसीना। तो मोहम्मद यूनुस जो है ये नोबेल प्राइज विनर है। सो एंड ही वाज नॉट हैप्पी एक्चुअली, एंड ही सेड कि शी इज वर्किंग लाइक अ डिक्टेटर एंड ऑल। खैर तो उसके बाद शायद इनको जो है मोस्ट लाइकली ही विल बी मेड सम एडवाइजर एंड ऑल, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल। ठीक है, तो बच्चे लोग प्रोटेस्ट में कह रहे हैं कि इनको बनाया जाए एडवाइजर। सो लेट्स सी, है ना। सो क्यों मिला था इनको नोबेल प्राइज? माइक्रो फाइनेंसिंग पर आई थिंक उन्होंने कुछ किया था ना, माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड। सो ग्रामीण बैंक, वेरी गुड। यस, प्रतीक, अरमान खन्ना, वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ हाँ, इंदिरा साहनी केस 50% का लिमिट लगाया था, वेरी गुड। शारवे, कराले, सैफी, नोमानी वाला राइट। हाँ ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट। फिर ये फॉर्मर क्रिकेटर, इनका तो आपने नाम सुना होगा, मशरफे मुर्तजा, इनके घर में आग लगा दिया गया। सो जब प्रोटेस्ट होता है बहुत ज्यादा, ही इज अवामी लीग एमपी, तो ये अवामी लीग में पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। तो जब थिंग्स गोज आउट ऑफ द हैंड तो सब फिर मॉब जस्टिस बहुत खराब होता है ना, लोग आग लगाना शुरू कर देते हैं और थिंग्स गोज आउट ऑफ द हैंड। हाँ, अब देखो रिसेंटली मैं आज पढ़ रहा था तो शशि थरूर का भी स्टेटमेंट है, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी इंडिफरेंट, पीस इन बांग्लादेश इन आवर इंटरेस्ट। अब देखो क्या होता है, जनरली स्पीकिंग एक इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था, पंचशील एग्रीमेंट जब हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उसमें भी एक एग्रीमेंट था, नॉन इंटरफेरेंस इन पर्सनल मैटर, होता है कि नहीं, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर। सो दिस इज जनरली अ प्रिंसिपल इन एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के पर्सनल मैटर में इंटरवीन करेगा। ओके, बट इफ यू सी इट केयरफुली, कैन वी से कि यस वी शुड नॉट इंटरवीन इन, आई मीन हम लोग को एकदम इंडिफरेंट रहना चाहिए? तो ये सेइंग कि नो, व्हाई? बिकॉज मोस्ट लाइकली हो सकता है इफ थिंग्स गोज आउट ऑफ हैंड तो ये अब इंटरनल मैटर शायद नहीं बचे। जैसे अगर बहुत ज्यादा वायलेंस, इफ द वायलेंस इज नॉट कंट्रोल, मे भी हो सकता है लोग इधर उठ के आने लगे, इधर उधर आने लगे। सो इट माइट, गॉड फॉरबिड, क्रिएट समथिंग रेफ्यूजी क्राइसिस, जैसे 1971 में थोड़ा बहुत हुआ था, तो उस तरह का मतलब समथिंग लाइक दैट। सो सेइंग इट कंप्लीटली दैट इट इज अ कंप्लीटली इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश परहैप्स इज नॉट राइट इफ थिंग्स गोज आउट ऑफ द हैंड। अगर जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा तो फिर तो हमारी कंट्री में अफेक्टेड होगा ना,
ओके, ठीक है, सो दैट इज वाई शशि थरूर परहैप्स हैज सेड दिस, ठीक है। खैर, तो खैर सेंटर ने अब आज जो है ना ऑल पार्टी मीट बुलाया था, यानी सारे लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाया था और डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो इनफैक्ट ऐसा कुछ रिपोर्ट्स जैसा आया कि इवन अपोजिशन और सारे लोगों ने सपोर्ट किया जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन में कंसेंसस नहीं बनता है, बट देयर आर सम इंसिडेंट्स वेयर अपोजिशन डायरेक्टली सपोर्ट्स द गवर्नमेंट, यानी पूरी तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया, एनिमल्स मतलब सारे लोग मिलके। So these are the reports coming in that okay, all the opposition parties are actually saying it to the government that yes, you take the decision, we all are supporting you in this matter, ठीक। ऐसा हुआ है पहले भी, आई थिंक करगिल वॉर के टाइम पर भी एंड ऑल, तो उस टाइम पर अपोजिशन भी पूरी तरह सपोर्ट करती है कि जो आपको सही लग रहा है यू शुड डू इट एंड ऑल। खैर, तो दैट इज इट। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स टॉक हु इज करेंटली द आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश। इन्होंने ही जो है 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दिया कि अब रिजाइन मार के चले जाइए। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज द वन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय शेख हसीना, ऑफ कोर्स, एंड आर्मी चीफ को डिसाइड तो प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। And he's been in the news. Yes, Mukti Sharma, Rashi, Arman Khanna, Mishika, Pratik, Adrija, Safi Nomani, Sharve Karale, Taj, Ansh, Arman Pritam, बहुत से लोग आंसर किया। Yes, मोहना राव, जनरल वकारू जमा, ठीक है। सो ही इज करेंटली द आर्मी चीफ। अगर आप गौर से देखो, लास्ट ये 23 जून 2024 को अपॉइंट किया गया। अब देखो उसमें है क्या चीज ना, तो किस तरह की रिपोर्ट भी आ रही है कि व्हेन ही वाज अपॉइंटेड द आर्मी चीफ, देखो 23 जून 2023 होना चाहिए, थिंक ना, लास्ट ईयर 23 जून 2023 को अपॉइंट किया गया, ठीक है। सो हार्डली आई वुड से 1 ईयर बैक। उस टाइम पर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने देखा, बिजनेस टुडे में देखा, इंडिया हैड वार्न्ड शेख हसीना अबाउट जनरल वकारुज्जमा, है ना, हिस्ट्री रिपीटिंग इन इंडिया वार्न्ड अगेंस्ट एक्स-पीएम ओवर अपॉइंटिंग जनरल वकारुज्जमा। मतलब इस तरह की कुछ रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया ने थोड़ा सा मतलब इशारा भी किया था कि परहैप्स, है ना, कि ये शायद प्रो चाइना है एंड मे बी हार्मफुल फॉर हर और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब रिपोर्ट आ रही है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है। तो अब क्या है कि अब नाउ आर्मी चीफ इज सेइंग दैट कि स्टॉप वायलेंस एंड मर्डर, तो आप क्राइम करना बंद कीजिए, तोड़ फोड़ मचाना, बिकॉज ऑफ कोर्स जब प्रोटेस्ट होता है ना बहुत कंट्रोल के बाहर होता है तो वायलेंस हो जाता है ना, नॉन वायलेंट बचता नहीं। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। अब चूंकि हम लोग इस की बात कर रहे हैं, हाँ हो सकता है जनरल 2024 से हो, लेकिन आर्मी चीफ जो लास्ट ईयर अपॉइंट किए गए थे। यस, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट 1971 वॉर एंड ऑल, तो एक ऑपरेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एंड ऑल, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जानना पड़ेगा अबाउट द बांग्लादेश। प्लीज टेल मी ऑपरेशन कौन सा था ये? यस, वेरी गुड, जस्ट सेइंग, मुक्ति शर्मा, अरमान खन्ना, मिशिका, यस वेरी गुड। अंश, ऑपरेशन सर्च लाइट बहुत फेमस था एक्चुअली। मैं होमवर्क आई वुड रिकमेंड कि इसको आप जाके पढ़िएगा, टू कब बंगाली नेशनलिज्म इन मार्च 1971 एंड ऑल, ठीक है। तो ये इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑपरेशन सर्च लाइट को थोड़ा सा पढ़िएगा, प्लीज गो एंड रीड इट, ठीक है। पोलो वाज फॉर गोवा, नहीं पोलो तो उसके लिए था ना, हैदराबाद के लिए था अरमान, जहां तक हमको याद आ रहा है। मेघदूत वाज फॉर सियाचिन, ठीक है, ये हमको जहां तक याद है हैदराबाद, एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद, ठीक है। खैर, सो हियर द राइट आंसर इज बी। हु इज करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ही इज आल्सो फ्रॉम अवामी लीग, लेकिन अब क्या किया उन्होंने, he actually ordered the dissolution of parliament and Khaleda Zia, the opposition main leader of opposition, to come out of jail. Currently president of Bangladesh is, yes, Safi Nomani, Ansh, Arman Khanna, Pratik, Akash, Pritam, Ansh, Mohammad Shahabuddin Shuppu, ऐसे शुप्पू शायद उनका निक नेम है। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप देखोगे ये भी अवामी ही लीग से हैं, ठीक है। सो ही वाज आई थिंक अपॉइंटेड लास्ट ईयर 24 अप्रैल 2023, और ही इज आल्सो फ्रॉम अवामी लीग, ओके। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट, है ना। सो प्रेसिडेंट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, वही जो मेन अपोजिशन लीडर थी, सो हस्बैंड वाइफ ऑफ जियाउर रहमान, ठीक है, जनरल जियाउर रहमान। Okay, the next is who is the student leader in Bangladesh who led the Bangladesh protest? नजरुल इस्लाम, नाहिद इस्लाम, नजमुल इस्लाम, मोहम्मद नजमी। सर गोवा में कौन सा है? आई नीड टू चेक इट अरमान। ऑपरेशन एक स्टूडेंट लीडर है जो विच इज एक्चुअली वेरी मच इन द न्यूज। हाँ, मैंने इसलिए ऐसा तीनों जगह
इस्लाम लगा दिए क्या? Nahid Islam, yes. The right answer is B. Nahid Islam is the right answer to this question. Who is Nahid Islam? Student leader who led protests against Sheikh Hasina. I think शायद बीच वाले होंगे मेरे ख्याल से. I'm not sure, but हाँ. नजरुल इस्लाम भी ना पहले लीडर रह चुके थे, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे पहले बांग्लादेश के. ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना. हाँ, ऑपरेशन विजय था गोवा लिबरेशन में. यस यस प्रतीक. हाँ. So here the right answer is B. Nahidul Islam is the right answer to this question. देखो ये नाम आ रहा, who is Nahidul Islam, देखो हर जगह न्यूज में. ठीक है, द स्टूडेंट लीडर फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी, जो इनकी ढाका यूनिवर्सिटी है. ओके, 26 ईयर ओल्ड है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है. खैर, अभी क्लास खत्म नहीं हुई बिकॉज आई विल बी गिविंग सम होमवर्क ऑल्सो. देखो ये मैंने कल होमवर्क दिया था. तो पहला क्वेश्चन ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. ये कहां मेंशन है? तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में. फिर मैंने दिया था लीडर ऑफ अपोजिशन को कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1969 में रिकॉग्नाइज किया गया था. और इससे रिलेटेड जो लॉ आया था सैलोप्स एक्ट, वो 1971 में आया था. तो इसका आंसर 1969 होगा. तीसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इफ देयर इज नो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल देन हु शुड बी एक्टिंग एज प्रेसिडेंट? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होता है. अगर सीजीआई भी नहीं रहे तब एनी सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट होंगे वो. फिर लास्ट से पूछा था कि व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ शेख हसीना, अवामी लीग, ये सब मैंने बताया था. हाँ, नजरुल इस्लाम शायद पोएट वगैरह भी थे. यस थ्री राइट. हाँ, तो मैंने देखा कुछ लोगों ने आंसर किया. यस, अशनूर कौर, प्रियांशी गोयल, यू ऑल हैड आंसर्ड इट. दिव्यांश पाटिल, अशनूर, है ना, यू ऑल वर राइट. अच्छा, एक जगह कुछ बच्चों ने 1977 कर दिया. तो देखो मैं बता देता हूँ, सैलोप्स एक्ट जो है ना, ये लॉ जो आया था ये 1977 में आया था. लेकिन फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ना इंडिया में, वो 1969 ही में आ गए थे. उनका नाम था राम सुभाग सिंह. सो प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हाँ कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है. ठीक है, सो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, इस लाइफ मिनट की आर्टिकल है which is talking about कि in 1969 राम सुभाग सिंह became the first leader of opposition. और लॉ जो बनाया गया था सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट, सैलोप एक्ट 1977 में बाद में बनाया गया. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. नाउ ये होमवर्क है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आज की क्लास का होमवर्क है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहला है कि फर्स्ट पीएम ऑफ बांग्लादेश लिखना आंसर में. दूसरा लिखना है जो मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था. ठीक है. तीसरा बताना है कि मुस्लिम लीग कौन से शहर में बना था, इन विच सिटी एंड विच ईयर. ठीक है, ये बताना है. और व्हाट इज मुक्ति बाहनी, ये बताना है आंसर में. इसको एक लाइन में आंसर कर दीजिएगा. ठीक है. सो देयर आर 4 क्वेश्चंस. तो आप ऐसे A1, A2, A3, A4, ये चारों एक्चुअली बांग्लादेश से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. जैसे आपको लग रहा होगा ना कि सर मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बनाई. यस, इट इज ट्रू दैट मुस्लिम लीग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग पाकिस्तान, बट यस ओरिजिनली एक्चुअली इट वाज मेड समवेयर इन बांग्लादेश. ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बताना है क्लास ओवर होने के बाद. Then Muhammad Yunus got Nobel Prize in the year, कौन से ईयर है ना, सिटी वेयर मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड, एंड व्हाट इज मुक्ति बाहनी. सर क्वेश्चन था कि व्हेन, हाँ वही मैं पूछ रहा था. ये मैंने ही पूछा था ना कि कब लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था. फर्स्ट थे 1969 में. ठीक है, तो जो उनका नाम है राम सुभाग सिंह. तो कंसेंसस है कि यही लीडर ऑफ अपोजिशन थे फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद जब लॉ बनाया गया ना तो उसको एक तरह से स्टैचुटरी पावर दे दिया गया. ठीक है, सैलरीज एंड ना सैलोप्स एक्ट में. जैसे मैं आपको बताता हूं जो कि आपको कंफ्यूजन है. जैसे सेबी है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में बनाया गया था. लेकिन सेबी एक्ट 1992 में बनाया गया और अब सेबी जो है एक स्टैचुटरी बॉडी है. ठीक है, तो अगर कोई ये पूछेगा कि सेबी कब बनाया गया तो आप बोलोगे 1988. अगर सेबी को स्टैचुटरी पावर कब दिया गया तब 1992. वॉर्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइज पर अच्छा अगर होगा ना, सो आई विल थिंक. ठीक है, अगर कुछ आने लगेगा सो आई विल थिंक ऑफ इट. तो हो सकता है मे बी टुमारो आल्सो 6 PM पर विल बी हैविंग मोर क्वेश्चंस एसोसिएटेड, क्योंकि न्यूज में चल रहा है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें और कुछ क्वेश्चंस होगा, तो मैं आई विल डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास. ठीक है, ये चारों याद रखिएगा. और आफ्टर द क्लास इज ओवर प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन नीचे. कोई क्वेश्चन है आपका? इज देयर एनी क्वेश्चन? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सारा बता दो, है ना. एक स्पेशल क्लास, चलो अच्छा है आपने बता दिया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल बी मीटिंग यू टुमारो. ठीक है सर, बट yesterday wasn't the question when was the leader of opposition formally recognized?
अच्छा ठीक है, अगर आप वैसे सोचते हो कि फॉर्मली रिकॉग्नाइज, तो यू कैन से फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज, लेकिन रिकॉग्नाइज 1969 में कर लिया गया था, लॉ बाद में बना था सैलोप्स एक्ट का। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ ठीक है धृति, यू आर आल्सो राइट। मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत हो, ठीक है, सैलोप्स एक्ट, बट टेक्निकली जब लीडर ऑफ पोजीशन फर्स्ट जो माना जाता है वो 69 में ही माना जाता है। ठीक है, उनको लॉ बनाया गया था और उसको स्टैचुरी पावर देकर के रिकॉग्नाइज किया था 1977 में। यस सही, ठीक है, वो पर्सपेक्टिव की बात है। ओके, यू आर आल्सो राइट, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट हाँ, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, देन यू विल आंसर ओके, नाम सुभाष सिंह। ठीक है, ओके। So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.